वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कल रात की बात है, अभी मोदी जी की बात हुई तो मुझे याद आ गया कि आपको पता है मोदी जी को ज़्यादातर मुस्लिम अक्सरियत ने वोट दिया है इंडिया से। कमाल, मतलब ये बात। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आज़िका अली और मेरे साथ है तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहे हैं, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। वाओ फैक्ट उर्दू को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें इसी तरीके से वीडियो सजेस्ट करते रहा करें। आज की हमारी वीडियो है दिस रेल ब्रिज विल चेंज द कश्मीर। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है दिस रेल ब्रिज विल चेंज कश्मीर फॉरएवर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। In its history of 168 years, the Indian Railways is building the most challenging project mankind can ever imagine. Kashmir Railway. The Udhampur-Srinagar-Baramulla Rail Link project. The most challenging project in the history of Indian Railways. Bridges after bridges and tunnels after tunnels. Looking at this project, it seemed that not even Mother Earth could stop the Indian Railways from building this new line. Some iconic displays like the Peer Panjal Railway Tunnel and the unique Chenab Bridge all fall on this line. Chenab Bridge, the world's highest railway bridge, recently completed its arch. Work on the other stretches are also going on in full swing. But among the glory of Chenab, another iconic engineering marvel failed to catch up the attention that it deserves. Construction of this underrated structure was so challenging that the engineers found the Chenab Bridge to be easier than this. It's none other than the Anji Khad Bridge. The Anji Bridge is India's first cable-stayed railway bridge, but that too in an unwanted manner. That's a long story, so let's start explaining. The Anji Khad Bridge is going to rest on a 196 meters deep canyon near Riyasi. Typically, such a height was decided to be joined with an arch bridge, which is similar to the mighty Chenab Bridge. While designing that bridge, something was discovered that became a matter of worry for the engineers. The load of the main span of an arch bridge is evenly distributed on two abutments or foundations settled on the slopes of the mountain. But in case of Anji Khad Bridge, engineers found that the slope of one side of the mountain was extremely unstable to hold the foundation of that arch, making it impossible to build a bridge like Chenab. There is no way in which a pier or a foundation could be built on that slope. Finally, with no choice left in hand, the plan to build the arch bridge was dropped. But something had to be built there. Without the bridge, it was impossible to complete the railway project. Finally, a new plan was made and an asymmetric cable-stayed bridge was proposed. Unlike conventional bridges, the asymmetric cable-stayed bridge was designed to distribute almost the entire load of the bridge on one side of the canyon, just by making a single pylon. As a result, the other slope that was found to be unstable was freed from bearing the load of the foundation. Just a minor abutment was planned to receive the span. This way, the problem was solved and engineers decided to go ahead with the project. Although the Anji Khad Bridge is a cable-stayed bridge, the main span is composed of a long truss and has two levels. The upper level or the deck is 15 meters wide and holds a single broad gauge track, a 3.75 meter wide service road and a pair of walkways along the edge also. The bottom level is 10 meters wide and has a second pair of walkways and cable ducts. Almost the entire bridge will be supported by a 193 meter high concrete tower that looks like an inverted Y. From Anji riverbed, the top of the tower will be a whopping 380 meters high. This tower will directly transfer a permanent load of 4 lakh kilonewton to the layers of rock underneath. This tower will strongly hold the load of the deck with 96 cables. The length of the critical span of the bridge is 473.25 meters, whereas the longest span will be 290 meters.
If you add up the approach viaducts, then it counts up to a length of 687 meters. A fabrication unit has been set up on the stable end of the bridge, where large trusses of bridge are being assembled. As the erection of the tower is completed, these trusses will be launched one by one from one end. But we need to wait for a long time, maybe few years, to see the bridge being shaped like its real form. Although the mighty Chenab Bridge is way ahead, country's dream of joining Kashmir with railways now depends on Anji Bridge. The Indian Railways is spending 458 crores on this bridge. That must have increased due to obvious reasons. As it turns into a reality, trains will clock a maximum speed of 100 kmph there. The structure is strong enough to deal with heavy storms and strong winds as well. Parts of Kashmir's Udhampur-Srinagar-Baramulla rail link is operational. But this critical 111-kilometer section between Katra and Banihal is now swinging to shape the project into reality. Tunnels after tunnels, bridges after bridges. Such a railway project will definitely become something that India can be proud of. For more videos on India's infrastructure projects, please subscribe to our channel. Also share. जी जनाब, क्या? बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगता है, चैलेंजिंग प्रोजेक्ट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है ये जो ब्रिज है ये इंडिया के लिए प्राउड साबित होने वाला है। पूरा प्रोजेक्ट जो है कश्मीर पे जो इतनी बड़ी एक ट्रैक बिछा हुआ है, ट्रेन चलेगी इन फ्यूचर, तो मैं ये कहता हूँ कि वाकई ये इंडिया के लिए प्राउड है। बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग और बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉस्ट। क्यों? कुछ अपनी जगह बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क। मैं कह तो रहा हूँ ना कि बहुत एक होता है पैसा लगना। एक प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, उसमें बहुत पैसा लग रहा है, ठीक है माना, लेकिन इतनी सी भी मिस्टेक, अगर कहीं पे इंजीनियरिंग की थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इन जगहों पे, अगर एग्जामिनेशन की गई पहाड़ की कि यार ये पहाड़ इस काबिल ही नहीं है और वहाँ पे इतना बड़ा ब्रिज बना दिया जाए, तो आपको पता है क्या सूरत हाल होगी। अच्छा, आपने देखा था कि एक जगह पे इशू आ रहा था कि एक जगह पे पहाड़ जो था वो लोड बर्दाश्त नहीं करेगा। नहीं, इससे पहले जो उन्होंने आइडिया हाँ, था, पहले आइडिया पे, हाँ, तो फिर उन्होंने क्या सोचा पता है, ये नया आइडिया कि हमारा तो पूरा प्रोजेक्ट इसकी वजह से ज़ाया हो रहा है, मतलब पूरा प्रोजेक्ट रुक जाएगा अगर ये मसला आया तो। फिर उन्होंने दूसरा आइडिया उस पर फिर काम किया। यानी कि ये वो प्रोजेक्ट के मतलब मजाक नहीं, यानी कि बहुत मुश्किल, बहुत टफ, बहुत ही ज़्यादा टफ। मैं ये कहूँगी कि एक देखें, एक किसी भी ज़मीन के ऊपर कोई काम करना, एक फ्लैट लैंड के ऊपर काम करना और एक पहाड़ों के ऊपर कोई सेटअप करना, कोई ब्रिज बनाना, मैं ये कहती हूँ इट्स नॉट एन ईजी टास्क। बिल्कुल, मेरे हिसाब से बहुत मुश्किल है और ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है। ये बहुत जल्दी नहीं ऐसा होगा कि जल्दी ऑपरेशनलाइज हो और जाए, आप ये तसव्वुर करें कि वैसे बहुत टाइम लगेगा, लेकिन आने वाली नस्लों को कितना बेनिफिट, कि यानी कि जहाँ पर पहुँचना ही नामुमकिन, आप पहाड़, अच्छा जीप जो होती है, जीप गाड़ियाँ पहाड़ों पे चढ़ती हैं या कुछ जगहों पे, तो कई जगहों तो ऐसी भी होंगी ना कि वहाँ पे जा ही नहीं सकते, रफ एंड टफ। ठीक है, एक तो वो हो गया। दूसरा, अगर उस तरफ आपने जाना है, पहाड़ हैं बहुत सारे और बहुत ही पथरीला इलाका है, आपने उस तरफ जाना है तो उसका रूट होगा बहुत ही लंबा हो सकता है, बहुत ही घूम फिर के आपको जो कुदरती अल्लाह पाक की तरफ से रास्ते बने होते कुछ, यानी कि पुराने दौर से घोड़े चलते थे, ऊँट चलते थे, या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें चलती थी जब लोग रास्ते बना लेते थे, यानी कि यहाँ से फलाने पहाड़ से चढ़ के पैदल जाते थे, काफ़िले होते थे, तो कुदरती तौर पे रास्ते बन ही जाते हैं, लेकिन वो बहुत लंबे होते हैं। अच्छा, जहाँ पे ये वाली बात आ गई पटरी की, ट्रेन की, तो ये तो कहीं से भी लोग बिछा सकते हैं ना, कहीं से भी, नीचे दरिया भी आ रहे हैं, पहाड़ भी आ रहे हैं, टनल्स भी आ रही हैं, तो ये तो अपना सीधा रास्ता देख रहे हैं। तो आप सिर्फ तसव्वुर कर लें कितना टाइम बच गया आपका। और आपको याद है कि हमने कहा था कि टाइम ही सबसे कीमती चीज़ है, और इतने कॉस्ट लग रही है, 10-10, 5-5 साल के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, इतना टाइम लगा कर, आपको पता है वो हज़ारों साल कवर करते हैं लोगों के। अगर कई लोगों का 1 घंटा कवर हुआ, कई साल तक लोगों का 1-1, 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे बच गए, पूरा दिन इनको लगता होगा वहाँ तक जाने में, वही आपका चंद घंटों में पूरा हो गया। तो आपने कई हज़ारों लोगों के हज़ारों घंटे बचा लिए, तो आपने कितना प्रॉफिट कमा लिया सर। अच्छा, ये हमने सेकंड वीडियो देखी कश्मीर के हवाले से, ब्रिज।
इससे पहले हमने चिनाब ब्रिज की देखी थी। बिल्कुल। तो मैं ये देख लूँ कश्मीर में काफ़ी मतलब इस तरीके के तरक्याती काम, काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है। बिल्कुल हो रही है। मोदी जी की हुकूमत में मैं देख रही हूँ इनके दौर में कि कश्मीर को बहुत फोकस किया जा रहा है। ऐसा ही जैसा है। कि हम कह रहे थे कि मोदी जी बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस कर रहे हैं, बहुत मतलब उनकी एक अहम नज़र है, एक अहम अटेंशन है इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, रेल्स को लेकर और इसके अलावा मेट्रोज को लेकर। तो मैं ये देख रही हूँ कि सिर्फ इंडिया के साथ साथ मतलब इंडिया में जितने भी हमने देखा था कि बॉम्बे हो गया और दूसरे सिटीज़ का भी हमने देखा था कि चेन्नई, ठीक है, और एक दो सिटीज़ हमने देखे थे नोएडा वगैरह और हैदराबाद। तो मैं ये देख रही हूँ इसके साथ साथ हम कश्मीर में भी देख रहे हैं काफ़ी तरक्याती काम हो रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, जबकि मैं बिल्कुल आप लोगों को सच बताऊं, ये तो चैनल की वजह से हमें थोड़ी सी मालूमात हो गई, लेकिन मैं 100% बताऊं कश्मीर को लेके पाकिस्तान में इंडिया के हवाले से कि वहाँ पे जुल्म है, वहाँ पे तरक्की नहीं हो रही, उनके साथ नाजायज़ हो रहा। अब आप देखिए ना कि यार कितने बड़े प्रोजेक्ट, कितने बड़े। मैं ये बोलूँगी ये जो वीडियोस हम देखते हैं ये ऐसा भी नहीं है कि मतलब मन घड़त हो। नहीं देखिए ना, अच्छा बनाकर अपलोड नहीं ऐसा तो सवाल ही पैदा नहीं था। सवाल भी नहीं होता ना। अच्छा, तो हमारी मेंटालिटी को ऐसे सेट कर दिया गया है कि जी कश्मीर में तो कुछ होता ही नहीं है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, हमारी जो पाकिस्तानी कौम है उसको गूगल करने की आदत नहीं है। और एक और बात, कोई किसी की चीज़ का प्रूव नहीं लेते लोग। हाँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हम कहीं सुने पे बहुत जाते हैं, बहुत ज़्यादा जाते हैं। हम चीज़ों को कंफर्म करने पे वो नहीं रखते, इसके ऊपर एतमाद कर लेते हैं, जल्दी एतमाद कर लेते हैं। जैसे मुझे किसी थर्ड पर्सन ने कुछ भी बोल दिया ये हवाले से, तो मैं मेंटली तौर पे मान लूंगी इस बात को, मतलब तहे दिल से कि हाँ वो सच बोल रहा है, और मैं 4 लोगों को कन्वे भी कर दूंगी वो बात कि हाँ क्योंकि मुझे वहाँ से पता चला, फिर उसको वहाँ से पता चला, फिर 4 लोग 8 लोगों में बोल देंगे। तो इस तरीके से हमारे पाकिस्तान में ये हो चुका है कि हमें ऐसा लगता था कि कश्मीर में कोई तरक्याती काम नहीं हो रहा, कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही, कश्मीरियों पे तो बिल्कुल मतलब कोई नज़र ही नहीं है हुकूमत की। लेकिन अब हमें चैनल के थ्रू, इन वीडियोस के थ्रू हमें पता चल रहा है, और इन वीडियोस को हम चैलेंज नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि नहीं यार ये मैं कहता हूँ कि अगर कोई भी पाकिस्तानी शख्स सेंसिबल वो करे, गूगल करे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इन फ्यूचर प्रोजेक्ट इन कश्मीर, जम्मू कश्मीर, तो उसकी तो आंखें खुल जाएंगी। वो तो हैरान हो जाएंगे कि यार इंडियन गवर्नमेंट कश्मीरियों के लिए इतना सोच रही है, जबकि वहाँ पे मुस्लिम अक्सरियत ही ज़्यादा है ना, मुसलमान ही है ना। तो अगर एक ऐसी गवर्नमेंट जिसे हम पाकिस्तानी, मैं कुछ चीज़ें थोड़ा सा उस तरह कह रहा हूँ कि हमें जो नॉलेज हो गई वो थोड़ी देर साइड पे, एज ए पाकिस्तानी, मोदी गवर्नमेंट कट्टर हिंदू गवर्नमेंट, ऐसा ही है सोच पाकिस्तान की, ठीक है ना। तो वो गवर्नमेंट एक होती है कोई भी गवर्नमेंट कि यार किसी गवर्नमेंट के दौरान में कश्मीर पे डेवलपमेंट हुई, ठीक है, माना। मोदी जी की गवर्नमेंट में कश्मीर के लिए काम हो रहा है, इम्पॉसिबल। एक आम पाकिस्तानी की सोच बता रहा हूँ, इम्पॉसिबल लगेगा, ख़ास तौर पे मोदी जी की गवर्नमेंट में, और यकीन ही नहीं आएगा। हम अगर ऐसा कुछ देख भी लेंगे तो हमारा दिमाग हमें ये चीज़, इस बात का हमें यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि ये गलत है, ये झूठे, ये फेक है। बिल्कुल। हम ऐसा कह देंगे फेक वीडियो, ये गलत है, ये झूठी है, हमें दिखाया गया, ये शोशा हो। लेकिन ऐसा नहीं है। हम जो वीडियोस देख रहे हैं वो 100% हमें पता है कि बिल्कुल फैक्ट दिखाया गया है, और दिखा रहे हैं, बाकायदा चीज़ें बन रही हैं, प्रोजेक्ट हो रहे हैं, और बाकायदा आपके पास वीडियोस आ रही हैं। एक तो एनिमेटेड वीडियोस होती हैं, एक बाकायदा उस प्रोजेक्ट के दौरान की वीडियोस हैं, ड्रोन शॉट्स हैं। आपने चनाब ब्रिज के वीडियोस देखी हैं कि किस तरह से मतलब है कि उस ब्रिज पे काम हो रहा है, वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज इन द वर्ल्ड। अच्छा, मैं आपको बताऊं, कल रात की बात है, अभी मोदी जी की बात हुई तो मुझे याद आ गया कि आपको पता है मोदी जी को ज़्यादातर मुस्लिम अक्सरियत ने वोट दिया है इंडिया से। कमाल, मतलब ये बात मुझे मतलब नहीं पता थी। मैंने कल रात में एक वीडियो देखी तो मुझे पता चली कि मुस्लिम अक्सरियत ने मोदी जी को पसंद करा है, बहुत बड़ी बात है, वोट दिया, बहुत बड़ी बात है। गवर्नमेंट से बहुत खुश है। इंडिया में आपने बताया था कि पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है, तो वहाँ पाकिस्तान की पूरी आबादी से ज़्यादा मुसलमान, वही बात हो कमाल है। तो वो सारे के सारे मोदी जी से सेटिस्फाइड है, मुस्लिम वो कमाल मोदी जी को पसंद कर रहे हैं। मैं कहता हूँ बड़ी बात है, बड़ी बात है। सिर्फ सोचें आपकी, भाई जो भी है मोदी जी हिंदू हैं, वो मुस्लिम्स हैं, अगर वो रिलीजन को लाते बीच में तो वो ऐसा कभी नहीं करते। और मुझे ऐसा लगता है वो इतनी रिस्पेक्ट देते हैं मुस्लिम्स को, मुस्लिम रिलीजन को, इस्लाम को, कि मुस्लिम्स के दिल में कोई ग्रजेस नहीं है मोदी जी को लेकर, वो बहुत दिल से उन्हें पसंद करते हैं, दिल से इज्जत करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि सबसे पहले तो इंडिया जो है वो एक कौम है, एक यूनिटी है, एक नेशन है। हमने कई मरतबा शुरू में वीडियोस में कहा ना कि फ़लाने हिंदूज़ या मतलब कुछ ऐसा कहा, लेकिन बाकायदा वहाँ की तरफ से आया कि नहीं ऐसा नहीं है, हम सबसे पहले तो वो हैं, हम सबसे पहले तो इंडियंस हैं, हम सबसे पहले, और यूनिटी है हमें। तो दोस्तों
बहुत ही वीडियो लंबी हो जाएगी अगर हम इधर से उधर निकल गए। तो दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह।